नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। कल का क्लास भी आज का क्लास भी तुम लोग बहुत अच्छे से लिए हो, अच्छे से पढ़े हो और होप सो तुम लोग समझे हो। क्लास 7 के बच्चों के लिए ये उनकी जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, एनवायरनमेंट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कल मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया, बायोस्फीयर के बारे में आप लोगों को पढ़ाया। जितना आप लोगों को समझ में आया प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहे, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। चलिए आज उसका लास्ट पार्ट इकोसिस्टम और ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर बेंगली स्टूडेंट ऑल्सो যে বাচ্চারা তোমরা হোপ আজকের ক্লাসটা ভালো করে নিয়েছো, ভালো করে ওই ক্লাসটাকে অ্যাটেন্ড করেছো, ক্লাসটা বুঝেছো, অ্যাটমসফিয়ারের বিভিন্ন লেয়ার এবং অ্যাটমসফিয়ার সম্পর্কে আমি আজকে যা কিছু পড়িয়েছি হোপসো তোমরা ওই জিনিসটাকে বুঝতে পেরেছো এবং ওই জিনিসটাকে আরও ভালোভাবে নিয়েছো। ঠিক আছে, যদি কিছু না বুঝতে পারো বা আমার পড়ানোর মধ্যে তোমাদের মনে হয় যে আরও কিছু ইমপ্রুভ করা যেতে পারে তো তোমরা আমাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জিনিসটা জানিও। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের শেষ পার্ট ফার্স্ট চ্যাপ্টার ক্লাস 7-এর এনভায়রনমেন্ট, তার আজকে লাস্ট পার্ট শুটিং হচ্ছে। তো এই होप्सो आज के क्लास तो तुम्हारे भालो लगবে। কেমন, चलो शुरू करी। फॉर हिंदी स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम से लेकर। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि है बायोटिक और अबायोटिक एलिमेंट। ठीक है, लिविंग एलिमेंट यानी मैंने पहले ही बोला था वीडियो में, प्लांट, एनिमल, बर्ड, फिश, जो भी जीवित है, जो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीवित एलिमेंट है, वो है लिविंग एलिमेंट या लिविंग तत्व। ठीक है, और नॉन लिविंग कौन सा है यानी अबायोटिक? सनलाइट, सॉइल, मॉइस्चर, एयर, ये सब कुछ है तुम्हारा नॉन लिविंग एलिमेंट। ठीक है, तो जो कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें लिविंग एलिमेंट नॉन लिविंग एलिमेंट के ऊपर फुल्ली डिपेंडेबल है। यानी एक अगर नॉन लिविंग एलिमेंट ना रहे तो भी लिविंग एलिमेंट रह नहीं सकता, और लिविंग एलिमेंट ना रहे तो नॉन लिविंग एलिमेंट के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो इकोसिस्टम जो है ये इकोसिस्टम उस एरिया को दर्शाता है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर नॉन लिविंग एलिमेंट को पूरा करते हैं, यानी नॉन लिविंग एलिमेंट की वजह से लिविंग एलिमेंट का अस्तित्व संभव है। इकोसिस्टम हर उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर जीवन संभव है। यहाँ तक कि ये एक रेन फॉरेस्ट में भी हो सकता है, एक ग्रासलैंड में भी हो सकता है, एक ओशन में, माउंटेन में, यहाँ तक कि एक छोटे से तालाब में भी। ठीक है, फॉर बेंगली स्टूडेंट আজকে আমরা পড়ব ইকোসিস্টেম। ইকোসিস্টেম কি? ইকোসিস্টেম হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স রিলেশনশিপ, একটা জটিল রিলেশনশিপ বিটুইন লিভিং আর নন লিভিং এলিমেন্ট। আমরা সবাই জানি যে আমরা পুরোপুরি আমরা যত এনিম্যাল মানে জীবিত প্রজাতি আছি বা যাদের ভেতরে জীবন আছে তারা পুরোপুরি ডিপেন্ড করে প্লান্টের উপরে, যেটা লিভিং অর্গানিজম, আর সানলাইট, ময়েশ্চার, এয়ার, ওয়াটার, পিএইচ, টেম্পারেচার, এই সমস্ত নন লিভিং এলিমেন্টের উপরে, যেটা হলো বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক এলিমেন্ট। লিভিং এলিমেন্ট নন লিভিং এলিমেন্টকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, বা লিভিং এলিমেন্ট নন লিভিং এলিমেন্টকে ছাড়া তার কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এরা ডাইরেক্টলি ডিপেন্ড করে নন লিভিং এলিমেন্টের উপরে। ঠিক আছে, আমি যদি বলি যে কোথাও এয়ার নেই, কোথাও ময়েশ্চার নেই, কোথাও ওয়াটার নেই, কোথাও এয়ার নেই, তো সেখানে লিভিং এলিমেন্ট থাকতেই পারে না, চাই সেটা প্লান্ট হোক, চাই সেটা এনিম্যাল হোক। সেই সমস্ত জায়গা যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে এবং সেই সমস্ত জায়গা যেখানে নন লিভিং এলিমেন্ট একটা লিভিং এলিমেন্টকে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করে বা বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত জিনিস প্রোভাইড করে, সেই সমস্ত জায়গাকে জুড়েই হচ্ছে ইকোসিস্টেম। এই ইকোসিস্টেম রেন ফরেস্টেও থাকতে পারে, মাউন্টেনেও থাকতে পারে, ওশিয়ানেও থাকতে পারে, ডেজার্টেও থাকতে পারে, গ্রাসল্যান্ডেও থাকতে পারে।
ইভেন একটা ছোট পুকুরেও থাকতে পারে, একটা লেকেও থাকতে পারে, একটা ছোট ডোবাতেও থাকতে পারে। এভরি প্লেসে যেখানে নন লিভিং এলিমেন্টের অস্তিত্ব আছে সেখানে লিভিং এলিমেন্টরা থাকতে পারে। চলুন আস্তে আস্তে আপনাদের সাথে ডিসকাস করি যে সমস্ত ইকোসিস্টেম আছে, বিভিন্ন ধরনের ইকোসিস্টেম আছে, বিভিন্ন জায়গার ইকোসিস্টেম আছে, আর প্রত্যেকটার একটা নিজস্ব কন্ডিশন আছে। যেরকম ডেজার্টের কন্ডিশন গ্রাসল্যান্ডের কন্ডিশনের থেকে আলাদা, গ্রাসল্যান্ডের কন্ডিশন রেন ফরেস্টের কন্ডিশনের থেকে আলাদা, ওশিয়ান মাউন্টেনের থেকে আলাদা। প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্ত জীবন আছে তারা প্রত্যেকের লিভিং স্টাইল, লিভিং ওয়ে অফ লিভিং, মানে বেঁচে থাকার যে রসদ, বেঁচে থাকার যে পদ্ধতি, প্রত্যেকটার আলাদা। সাইবেরিয়ার ভাল্লুক যেভাবে থাকে, ডেজার্টের গিরগিটি সেভাবে থাকে না। ওশিয়ানের মাছ কিন্তু সেইভাবে থাকে না যেভাবে মাউন্টেনের সাইবেরিয়ান ভাল্লুক থাকে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা জায়গার লিভিং ওয়ে আলাদা। चलो डिस्कस करें फॉर हिंदी स्टूडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं हर एक इकोसिस्टम के बारे में, चाहे वो रेन फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो, डेजर्ट हो, ओशन हो या कहीं और। हर एक जगह का वे ऑफ लिविंग अलग है। जो साइबेरियन भालू है वो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट के उस एनाकोंडा से अलग होगा, उसका वे ऑफ लिविंग। जो रेन फॉरेस्ट के एनिमल है वो डेजर्ट के ऊंट या गिरगिट से उनका वे ऑफ लिविंग अलग होगा। एक्सट्रीम कंडीशन दोनों का अलग होगा। हर दोनों का एक गठन जो है, क्योंकि आप एक चीज़ देखिएगा कि जो ठंड का जगह है वहाँ पर शारीरिक गठन एनिमल का एक डेजर्ट से या एक प्लेन प्लेस से अलग होता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में। जो रेन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं। रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन, एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एक टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो होता है जहाँ पर मिनिमम बरसात 2000 से 10,000 यानी 2000 to 10,000 मिलीमीटर तक बरसात होता है साल में। और वो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो अर्थ के इक्वेटर जो है, यानी अगर पृथ्वी है तो मैंने बोला है एक इमेजिनरी लाइन जियोग्राफर वो ड्रॉ करते हैं पृथ्वी को दो भाग में बांटने के लिए, जो है 0 डिग्री का जो है इक्वेटर। ठीक है, इस इक्वेटर के आसपास जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका का कुछ पार्ट हो, जो भी देश इस जगह के आसपास होगा वहाँ पर बरसात 2000 से 10,000 मिलीमीटर तक होगा। वहाँ सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाएगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब प्रजाति के, यानी या तो बहुत बड़े बड़े प्रजाति के जानवर आपको दिखेंगे, या फिर बहुत लंबे, यहाँ का जो पेड़ होते हैं ना ये बहुत लंबे होते हैं, जैसे रेडवुड, आयरन वुड, ये सारे बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ऑलमोस्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जितने भी अच्छे क्वालिटी के लकड़ियाँ होती है ना वो इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो एनाकोंडा के बारे में आप एनाकोंडा मूवी होप सो देखे होंगे, एनाकोंडास जो पाए जाते हैं वो इसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इस रेन फॉरेस्ट का एक छोटा सा खासियत मैं बता दूं, इस रेन फॉरेस्ट में एक वेदर होता है जहाँ पर सुबह का जो लगभग 3 बजे तक बहुत गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा सूर्य का किरण इस यहाँ पर पड़ता है और बहुत गर्मी होता है। पर शाम के 4 बजे के बाद डेली बहुत तेज़ तूफान के साथ बारिश आता है। इस जगह के बरसात को बोला जाता है 4 o'clock रेन। ठीक है, आपने अमेज़न के बारे में तो सुना होगा, होप सो आप लोग जिन्होंने भी एनाकोंडा मूवी देखा होगा वो अमेज़न जंगल के बारे में सुना होगा, वो अफ्रीका के जंगल के बारे में सुना होगा। ये सारे जंगल जो है वो इक्वेटर के आसपास है और वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड में पाए जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मल रेन होता है। ठीक है, यहाँ पर भी फॉरेस्ट होता है बट इस एरिया से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया से कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं यूजुअली वो डेसिडुअस पेड़ होते हैं। ठीक है, एवरग्रीन पेड़ नहीं होते हैं। और
उनमें एक टाइम तक, मतलब जैसे एक सीज़न में, जैसे स्प्रिंग के सीज़न में या विंटर के सीज़न में वो पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते आते हैं विंटर के बाद स्प्रिंग में। ठीक है, फॉर बेंगली स्टूडेंट बोले दी जे रेन फरेस्ट के निये आमी आलोचना करछि। तो रेन फरेस्ट दो टाइपेर हय, एक हय ट्रपिकल रेन फरेस्ट, एक हय टेम्पारेट रेन फरेस्ट। ट्रपिकल रेन फरेस्ट ओई एरियागुलोते हय जेटा इकुएटर, এই যে 0 ডিগ্রি যে ইকুয়েটর লাইন, সেই ইকুয়েটর লাইনের কাছাকাছি এরিয়াগুলোতেই হয়, চাই সেটা সাউথ আমেরিকা হোক বা আফ্রিকার যে পার্টটা ইকুয়েটরের কাছে পড়ছে সেইখানে এই ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট পাওয়া যায়। এখানকার বৃষ্টিপাত 2000 থেকে 10,000 মিলিমিটার, यानी প্রচুর পরিমাণে এখানে বৃষ্টিপাত হয়। ঠিক আছে, এখানে অনেক রেয়ার প্রজাতির জন্তু জানোয়ার, অনেক রেয়ার প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়। আপনারা আফ্রিকার মানুষখেকো গাছের নামে শুনেছেন? এই এরিয়াতে কিন্তু সেই সমস্ত গাছ পাওয়া যায়। রেডউড, আয়রন উড, মেহগিনি, ম্যাপল, বিভিন্ন টাইপের শক্ত কাঠের গাছ, উন্নত মানের কাঠের গাছ এই জঙ্গলে পাওয়া যায় ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টে। কারণ এখানে এত পরিমাণ বৃষ্টি হয় আর এখানকার সয়েল যে সে এতখানি পুষ্টিকর, यानी নিউট্রিয়েন্ট যুক্ত, যে এখানে গাছপালা খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি হয়। আপনারা অ্যানাকন্ডা মুভি দেখেছেন তো? এই অ্যানাকন্ডা সাপ কিন্তু এই ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টেই পাওয়া যায়। ঠিক আছে, কারণ এটা অনেকটা ডেন্স, অনেকটাই ঘন, আর এখানে জমিতে সূর্যের আলোটা ডাইরেক্ট কখনো পৌঁছাতে পারে না। আর আপনারা যখন আস্তে আস্তে বড় হবেন, 11-12-এ উঠবেন, এই চ্যাপ্টারটার উপরে অনেক বড় বড় ভালো ভালো থিসিস আপনারা পড়তে পারবেন। অনেক ভালো ভালো কথা আমাদের লেখকরা, জিওগ্রাফিস্টরা লিখে গেছে, তো আপনি পড়তে পারবেন। একটা সিম্পল কথা বলে দিই আপনাকে, ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টে যে বৃষ্টিটার নাম হচ্ছে 4 o'clock রেন। এভরিডে 4 o'clock-এ, মানে 4টের সময় বজ্রবিদ্যুৎ সহ এখানে বৃষ্টিপাত হয়। সারাদিন তাপমাত্রা উচ্চ থাকা সত্ত্বেও 4টের সময় বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য এই রেনটার নাম 4 o'clock রেন। ঠিক আছে, তো হোপসো এটা বুঝে গেছেন। এরপরে হচ্ছে টেম্পারেট রেনফল। টেম্পারেট রেন ফরেস্ট ওই এরিয়াগুলোতে, মানে এই ইকুয়েটর লাইনের নর্দার্ন সাইডে এবং সাউদার্ন সাইডে এই টেম্পারেট রেন ফরেস্টটা থাকে। ঠিক আছে, টেম্পারেট রেন ফরেস্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এভারগ্রিন না, এগুলো হচ্ছে ডেসিডুয়াস রেন ফরেস্ট, মানে পর্ণমোচী বৃক্ষ, যেটা সারা বছরে পাতা সবুজ থাকে, শীতকালে পাতা ঝরে যায়, বসন্তকালে আবার নতুন পাতা আসে। এখানে বৃষ্টিপাত সামান্য থেকে একটু বেশি হতে পারে। আর এই রেন ফরেস্টে নর্মাল জীবজন্তু পাওয়া যায়, যেরকম বাঘসিংহ আমাদের এখানে পাওয়া যায় নর্মালি। ঠিক আছে, তো হোপসো এই রেন ফরেস্টটা আপনারা ভালো করে বুঝে গেছেন। चलून पढ़ी ग्रासलैंड सम्पर्के। चलिए ग्रासलैंड के बारे में अब समझते हैं। ग्रासलैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ग्रासलैंड जो है वो भी हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है। चलिए पढ़ते हैं ग्रासलैंड के बारे में, यानी घास का ज़मीन। ग्रासलैंड में जो इकोसिस्टम पाया जाता है वो रेन फॉरेस्ट के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है। इस ग्रासलैंड में कोई बड़ा पौधा या श्रब्स, यानी कि जो गुच्छेदार पेड़ होता है, जैसे लाइक बेगनवेला, वैसा कोई पेड़ पौधा नहीं दिखता है। ना ही बड़े बड़े आम और पीपल जैसे पेड़ दिखते हैं। यहाँ बस बहुत हाइट के, कम हाइट के हर टाइप के ग्रास होते हैं, इसीलिए इसको ग्रासलैंड कहा जाता है। ये यूजुअली यहाँ पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जैसे चरगाह वाले प्राणी, गाय, भैंस, यानी बाइसन, काऊ, डियर, ज़ेब्रा, इस टाइप के प्राणी यहाँ पर मिलते हैं। आपने यूजुअली ये कुछ पर्टिकुलर, मतलब अर्थ के बहुत सारे पर्टिकुलर प्लेस में ही ये पाया जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड को कहा जाता है डाउन्स, फिर साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को कहा जाता है प्रेरीज, नॉर्थ अमेरिका के पैम्पास, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड को कहा जाता है पम्पास, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को कहा जाता है प्रेरीज, अफ्रीका के ग्रासलैंड को कहा जाता है सवाना। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है बाय द वे। तो यहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है वो रेन फॉरेस्ट या माउंटेन से अलग है। ठीक है, चलুন फॉर बेंगली स्टूडेंट আমরা এবার আলোচনা করব গ্রাসল্যান্ড নিয়ে, মানে ঘাসের জমি।
তো এই এরিয়াতে, এই গ্রাসল্যান্ড এরিয়া ইকোসিস্টেম রেন ফরেস্টের বা মাউন্টেনের ইকোসিস্টেমের থেকে একদমই আলাদা। এখানে কোনো রকমের কোনো বৃহৎ বৃক্ষ মানে বট গাছ, আম গাছ, এই জাতীয় বৃহৎ বৃক্ষ বা শ্রাব यानी কলা গাছ বা বেগুনভেলা টাইপের কোনো বৃক্ষ পাওয়া যায় না। এখানে খুব ছোট ছোট প্রজাতির ঘাস বা অনেক বড় বড় প্রজাতির ঘাস পাওয়া যায়। এইখানে ম্যাক্সিমাম ওই প্রাণীগুলোকেই পাওয়া যায় যারা ম্যাক্সিমাম ডোমেস্টিক অ্যানিমেল, লাইক কাউ, বাইসন, ডিয়ার, জেব্রা, এই টাইপের। ঠিক আছে, তো কিছু গ্রাসল্যান্ডের নাম আমি আপনাদেরকে বলছি, যেরকম অস্ট্রেলিয়ার ডাউন্স, আফ্রিকার সাভানা, সাউথ আমেরিকার পাম্পাস, নর্থ আমেরিকার প্রেরিজ, এগুলো কিছু বিখ্যাত গ্রাসল্যান্ড। ঠিক আছে, চলুন আলোচনা করি ডেজার্ট নিয়ে। তো ডেজার্টের অবভিয়াসলি আমি বোঝাতে পারছি যে প্রত্যেকটা ইকোসিস্টেম প্রত্যেকটার থেকে আলাদা। তো ডেজার্টের ইকোসিস্টেম কীরকম হতে পারে আপনাদের ধারণা অনুযায়ী? ডেজার্ট একটা খুব ভার্নারেবল কন্ডিশন, মানে যেখানে লাইফ পসিবলই নয়, যেখানে জলের অভাব, বিভিন্ন রকমের গাছপালার অভাব, এক্সট্রিম হট ওয়েদার, মানে এতটাই হট ধারণার বাইরে, নাইটের যে টেম্পারেচার 1.5 থেকে অনেক কম, মানে এক্সট্রিম কন্ডিশন যাকে বলা হয়, এরিড यानी শুষ্ক, প্রচণ্ড রকমের শুষ্ক। তো এখানে যে সমস্ত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, মানে যে সমস্ত গাছ পাওয়া যায়, সেগুলো জেরোফাইট মানে ক্যাকটাস জাতীয় গাছ পাওয়া যায়, অ্যালোভেরা বা বিভিন্ন ক্যাকটাস জাতীয় গাছ, যেগুলোতে পাতা কাঁটার রূপে থাকে এবং এর কাণ্ডটা বড় বড় মানে এইরকম টাইপের থাকে। ঠিক আছে, জেরোফাইট ম্যাক্সিমাম এরকম টাইপের থাকে, আর এর মধ্যে যে কাঁটাগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে পাতা। ঠিক আছে, তো এর যে কন্ডিশন, এক্সট্রিম ক্লাইমেট কন্ডিশন, এখানে মেনলি পাওয়া যায়, মানে উট তো আপনারা সবাই জানেন ডেজার্টে পাওয়া যায়, তাছাড়া লিজার্ড, কিছু ডেজার্টিক স্নেক, শুধুমাত্র এই সমস্ত প্রাণীই পাওয়া যায় যারা एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते पारे। फॉर हिंदी स्टूडेंट चलिए पढ़ते हैं डेजर्ट के इकोसिस्टम के बारे में। ये तो आप सब लोगों को पता है कि डेजर्ट जो है वो काफ़ी वर्नरेबल कंडीशन है, यानी काफ़ी भयानक कंडीशन है। यहाँ का वेदर जो है वो बहुत गर्म है और सूखा यानी एरिड रीजन है। यहाँ का वेजिटेशन दूसरे किसी भी यानी रेन फॉरेस्ट या ग्रासलैंड के वेजिटेशन से एकदम अलग है, और यहाँ पर ना के बराबर बरसात होता है। तो इस वजह से यहाँ का जो वेदर कंडीशन है वो एक्सट्रीम है, यानी दिन का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है और रात का टेम्परेचर एकदम ठंडा है। तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में नॉर्मल इंसान का या नॉर्मल एनिमल का रहना पॉसिबल नहीं है। डेजर्ट में ज़ीरोफाइट पैदा होते हैं। ज़ीरोफाइट यानी कैक्टस टाइप के पेड़ पौधे, जिनके पत्ते जो होते हैं वो मूल यानी कांटे के जैसे होते हैं, और इनका जो ये होता है स्टिम होता है वो इस टाइप के होते हैं, जिसको काटने पर काफ़ी थिक होता है, और उसके काटने पर ये अंदर से बहुत मतलब वाटरी होता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है। इस इंटेंस हीट में या इंटेंस हॉट कंडीशन में सिर्फ वही जीव सर्वाइव कर सकते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर या फिर जो एग्जैक्टली इस कंडीशन के लिए बने हैं, लाइक डेजर्ट स्नेक, डेजर्ट लीजर्ट यानी गिरगिट जो होते हैं, या फिर ऊँट, इस टाइप के प्राणी ही यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं माउंटेन के बारे में। जो भी माउंटेन्स है, लाइक हिमालय, लाइक अल्प्स, लाइक रॉकी, ये सारे जो माउंटेन हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और काफ़ी अलग होता है समतल के कंडीशन से। यानी अगर आप प्लेन में रहे, प्लेन यानी लाइक हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का कंडीशन माउंटेन की कंडीशन से बिल्कुल अलग है। यहाँ का सॉइल जो है बहुत हल्का होता है, यानी सॉइल जो है वो इतना नॉर्मल नहीं होता, सेंसिटिव सॉइल होता है। कभी भी सॉइल इरोशन हो सकता है, कहीं भी भूकंप आ सकता है, कहीं पर भी कोलैप्स हो सकता है, कहीं भी सॉइल इरोशन होने का संभावना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो इस वजह से नॉर्मल पेड़ पौधे का या नॉर्मल जीव का इस जगह पे रहना पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं सब शंकु आकार के होते हैं, यानी कि आपने पाइन, फार, स्प्रूस के बारे में तो पढ़ा होगा। क्रिसमस के टाइम में जो पेड़ आते हैं हमारे घर पर, पाइन पेड़, ये तो आपने देखा होगा। आपको पता है ये ऐसा क्यों होता है? ताकि जब इस पर बर्फ पड़े ना तो बर्फ यहाँ पर टिक के ना रहकर गिर जाए, क्योंकि ये शंकु आकृति का है, ठीक है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो ऊपर का परत वैक्सी यानी मोम जैसा होता है, ताकि इतने ठंडे में उस पत्ते से मॉइस्चर ना उड़ जाए, और काफ़ी मोटे होते हैं। और पत्ते जो होते हैं वो सुई के जितने नुकीले होते हैं, ताकि उनमें बर्फ़ ना जम पाए, ठीक है। और यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं जैसे साइबेरियन भालू और साइबेरियन डॉग्स जो होते हैं, हस्की, जैसे आपको सबको पता है हस्की जो बहुत क्यूट डॉग है, तो इनके शरीर का जो कंडीशन है, इनके शरीर में जो फर होता है एक थिक लेयर होता है, ताकि वो उस एक्सट्रीम ठंडा को, उस एक्सट्रीम जो बर्फबारी को वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है। तो फॉर बेंगली स्टूडेंट আমরা এবার পড়ব মাউন্টেন্স নিয়ে। তো মাউন্টেনের ইকোসিস্টেম এটা অনেক হাই অল্টিটিউডে থাকে, এখানে যে ওয়েদার প্রেশারটা থাকে অনেক কম থাকে, মানে লো ওয়েদার প্রেশার থাকে। তো এখানকার কন্ডিশনও ভীষণ ভার্নারেবল, যেটা ডেজার্ট বা গ্রাসল্যান্ড বা রেন ফরেস্টের কন্ডিশনের থেকে একদম আলাদা। এখানে সয়েল যেটা হয়, মানে মাটি যেটা হয়, খুবই সেন্সিটিভ সয়েল হয়, যে কোনো টাইমে এখানে সয়েল ইরোশন হয়। অবভিয়াসলি সয়েল খুব বেশি ময়েস্ট সয়েল হয় না এখানে, যে কোনো টাইমে এখানে কোলাপশন হয়, यानी যে কোনো টাইমে ধস নামে, যে কোনো টাইমে ভূমিকম্প আসে। তাই এখানকার যে ওয়ে অফ লিভিং মানুষের, এখানকার গাছপালা, এখানকার পশু পাখি, সমস্ত কিছু সমতলের পশু পাখি জীবনযাত্রা এবং গাছপালার থেকে একদম আলাদা হয়। তোমরা যারা পাহাড়ে গেছো তারা দেখতে পেয়েছো পাইন, ফার, স্প্রুস যে গাছগুলো হয় এগুলো ঠিক এরকম আকৃতির হয়, শঙ্কু আকৃতির হয়, यानी ক্রনিক্যাল হয়। এটা কেন এরকম হয় জানো? কারণ যদি বরফ পড়ে তো বরফটা শঙ্কু আকৃতির জন্য এখানে টিকে থাকতে পারবে না, বরফটা ঝরে পড়বে। আর এই পাইন, ফার, স্প্রুসের যে পাতাগুলো হয় এগুলোর উপরে একটা ওয়্যাক্স বা মোমের কোটিং টাইপের থাকে, যাতে এর ভেতরের ময়েশ্চারটা এক্সট্রিম ঠান্ডাতে উড়ে না যায়, আর পাতাগুলো শঙ্কু আকৃতির হয়, ঠিক আছে, যাতে বরফ ওগুলোতে টিকতে না পারে। তাছাড়া এখানে যে জীবজন্তুরা পাওয়া যায় তারা যেরকম সাইবেরিয়ান ভাল্লুক, সাইবেরিয়ান ডগ, সাইবেরিয়ান ডিয়ার, যে সমস্ত কিছু থাকে তাদের শরীরের উপরে পশমের একটা মোটা লেয়ার থাকে, যাতে এক্সট্রিম কোল্ড কন্ডিশনটা ওরা সহ্য করতে পারে। মানে একদম মাইনাস টেম্পারেচার পর্যন্ত এখানে টেম্পারেচার হতে পারে, তো এখানকার এই টেম্পারেচারটাকে ওরা সহ্য করতে পারে। হিমালয়ান, আল্পস, রকি মাউন্টেন, এই সমস্ত এরিয়াটাতে এই রকম টাইপের ভেজিটেশন, এইরকম টাইপের ইকোসিস্টেম আমরা পেতে পারি, ঠিক আছে। চলুন পড়ি ওশিয়ানের ইকোসিস্টেম। ওশিয়ানের ইকোসিস্টেম ওয়ার্ল্ডের লার্জেস্ট ইকোসিস্টেম। অবভিয়াসলি ওশিয়ান সব থেকে বেশি আছে, ইভেন ওয়ার্ল্ডের 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল। তো 3 ভাগ জলের ইকোসিস্টেম অবভিয়াসলি 1 ভাগ স্থলের ইকোসিস্টেমের থেকে একদমই বেশি পরিমাণে হবে এবং লার্জেস্ট ইকোসিস্টেম হবে। এইটা ওশিয়ান মেনি স্পিসিসের, মানে অনেক ধরনের স্পিসিসের বাসস্থান, অনেক ধরনের গাছের বাসস্থান, ছোট ছোট বিভিন্ন অ্যাকোরিয়াম যাদের বাড়িতে আছে তারা নিশ্চয়ই দেখেছো যে জলের তলায় যে গাছগুলি থাকে, যে প্লান্টগুলো থাকে, ওগুলোর কন্ডিশন, ওগুলো দেখতে বা ওগুলোর ওয়ে অফ লিভিং একদম আলাদা নর্মাল গাছের থেকে। তাছাড়া এখানে যে সমস্ত জলীয় জীবরা থাকে, যেরকম ফিশ, অক্টোপাস, স্কুইড যা কিছু থাকে, স্টোন ফিশ, তারপর ইল, বিভিন্ন টাইপের যা কিছু ফিশ থাকে বা যে সমস্ত জলীয় জীব থাকে তাদের ওয়ে অফ লিভিং আলাদা। তাদের শরীরে গ্রিল থাকে বা ফুসফুসের জায়গায় এদের থাকে ফুলকা, যেটা ওদেরকে নিঃশ্বাস নিতে সুবিধা করে। এদের ইকোসিস্টেমটাকে আর একটু ভালোভাবে আমি যদি ডিফাইন করি তো ওশিয়ানের ইকোসিস্টেমটাকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়: সানলাইট জোন, টুইলাইট জোন আর মিডনাইট জোন।
সানলাইট জোন ওই এরিয়াটায় যেখানে মোটামুটি উচ্চতা মানে সানলাইটটা পৌঁছাতে পারে। ওশিয়ানের খুব একটা ডেপথে নয়, 30 to 40 কিলোমিটার অবধি এই ডেপথটা থাকে এবং এই ডেপথ অবধি সানলাইট পৌঁছাতে পারে, যার জন্য এখানে মাছ, অক্টোপাস, স্কুইড, বিভিন্ন রকমের গাছপালা, কোরাল এগুলো পাওয়া যায়। ঠিক আছে, এর একটু পরে আসি টুইলাইট জোন, যেখানে সূর্যের আলোটা পুরোপুরি পৌঁছায় না, কিছুটা হলেও পৌঁছায়। তো এখানে একটু ভেজিটেশন বা এখানে যে জলীয় জীবরা তারা সানলাইট জোনের থেকে একটু আলাদা, হয়তো আকারে বৃহৎ বা এদের যে মানে বডি স্ট্রাকচার এটা সানলাইট জোনের থেকে কিছুটা আলাদা। মোটামুটি এখানে গাছপালা পাওয়া যায় খুব বেশি না হলে। আর যেটা মিডনাইট জোন ওশিয়ানের, সেখানে একদমই সূর্যের আলো পৌঁছায় না, তাই এখানে জীবন সম্ভব নয়। মিডনাইট জোন জানেন তো কোন জায়গাটা? যেরকম প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়ানা ট্রেঞ্চের যে নিচের ভাগটায় যেখানে একদমই সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না, সেখানে এই মিডনাইট জোনটা থাকে, কারণ এখানে কোনো জীবের অস্তিত্ব থাকা বা কোনো গাছপালার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়, কারণ সূর্যের আলো ছাড়া কোনো গাছপালা থাকতে পারে না। फॉर हिंदी स्टूडेंट चलिए पढ़ते हैं हम लोग ओशियन के इकोसिस्टम के बारे में। आप सबको पता है कि पृथ्वी में 3 भाग पानी है और 1 भाग लैंड है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ओशियन का इकोसिस्टम लैंड के इकोसिस्टम से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट पाया जाता है, जो कि लैंड के इकोसिस्टम से बिल्कुल अलग है। इनका वे ऑफ लिविंग भी अलग है। ओशन में जो स्पीसीज पाए जाते हैं वो हमारे जैसे लंग से सांस नहीं लेते, वो सांस लेते हैं गलफड़ा यानी गिल्स से, जिनका वे ऑफ लिविंग, बॉडी स्ट्रक्चर जो सरफेस में प्राणी रहते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका भी स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लोगों के बहुतों के घर में एक्वेरियम होगा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं वो नॉर्मल पेड़ पौधों से अलग होता है, उनका कलर, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। ये मरीन जो इकोसिस्टम है इसको 3 भागों में बांटा जाता है, वो है ओपन ओशियन, डीप सी ओशियन और कोस्टल एरिया ओशियन। ठीक है, वो है ओपन ओशियन, उसके बाद है डीप सी ओशियन और कोस्टल मरीन ओशन। ठीक है, ओशन में जो मरीन इकोसिस्टम पाया जाता है उसको, उस एरिया को 3 भाग में बांटा जाता है। तो देखते हैं किस टाइप का इकोसिस्टम इस जगह पे पाया जाता है। इस इकोसिस्टम को 3 भाग में बांटा जाता है ओशन इकोसिस्टम को। वो जोन है सनलाइट जोन, ट्वाइलाइट जोन और मिडनाइट जोन। सनलाइट जोन यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच पाती है, वहाँ पर ऑब्वियसली प्लांट है, बहुत सारे पेड़ पौधे प्लांट्स है, बहुत सारे जीव जंतु हैं जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश, स्टोन फिश, ईल फिश, डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। ठीक है, और जो ट्वाइलाइट जोन है वहाँ पर बहुत हद तक, मतलब लगभग 40% to 50% सनलाइट पहुँच पाता है। तो यहाँ पर जो भी प्लांट्स है वो सन जोन से अलग होता है और ये थोड़े से आकार में बड़े होते हैं। यहाँ पर जो भी प्राणी पाए जाते हैं ट्वाइलाइट जोन में ये थोड़े बड़े होते हैं, यानी ये लगभग थोड़ा सा डीप ओशन के साइड में ही होता है। और एक जोन होता है मिडनाइट जोन, यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती है। उस जगह पर क्या होता है कि उस जगह पर किसी भी टाइप का प्लांट या फिर एनिमल नहीं पाए जाते, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना कोई भी जीव का ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि यहाँ पर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एनिमल का रहना पॉसिबल नहीं है।
ये एक्चुअली उस जगह पर होता है जैसे मरियाना ट्रेंच है, जो कि सी सरफेस से लगभग 11 to 12 हज़ार किलोमीटर नीचे है, जहाँ पर वाटर प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पर कोई प्राण का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो इकोसिस्टम है, ये यूनिक इकोसिस्टम है और यहाँ का जो फ्लोरा और फौना है, यानी यहाँ का एनिमल और प्लांट है, जो नॉर्मल से अलग होता है। तो अभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया इकोसिस्टम। अब है ह्यूमन एनवायरनमेंट। चलिए जानते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल हमारे प्रकृति के ऊपर डिपेंडेबल है, हमारी प्रकृति से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत कुछ ले पाते हैं, वैसे ह्यूमन भी डायरेक्टली डिपेंड करते हैं हमारे इकोसिस्टम पर, हमारे बायोस्फीयर पर। वो भी हमारे बायोस्फीयर का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बट ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ एक अलग रिश्ता बनाता है, यानी कि जो अलग एनिमल होते हैं ह्यूमन से अलग, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, जो अलग अलग एनिमल होते हैं, उनका रिलेशन एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को एग्जैक्टली उतना ही यूज़ करते हैं जितना उनको ज़रूरत है। बट ह्यूमन का एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी, और ह्यूमन अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से एनवायरनमेंट को बहुत हद तक यूज़, इवन मिसयूज़ भी करते हैं। यानी जो वन मानुष थे वो केव्स में रहते थे और प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंसी उनका उतना ही था जितना अलग अदर एनिमल का है। वो प्रकृति को हार्म नहीं करते थे, वो प्रकृति से जितना लेते थे वो ज़रूरत के हिसाब से लेते थे। अर्लियर मैन का वे ऑफ लिविंग बहुत इजी था, बट मॉडर्न मैन का वे ऑफ लिविंग प्रकृति से अलग है। वो अपने, जैसे कि मैंने बोला, वो अपने नीड के हिसाब से एनवायरनमेंट को यूज़, इवन मिसयूज़ भी करते हैं। डे बाय डे उनकी ज़रूरतें, ह्यूमन की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाने, यानी उसको डेंजरस तरीके से क्षति पहुंचाने का कोशिश करता है। ह्यूमन फॉरेस्ट को काट रहा है, जिसकी वजह से बहुत हद तक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का परिमाण बढ़ रहा है। ह्यूमन पेड़ पौधों को काटकर अपना शेल्टर बनाता है, एग्रीकल्चर फील्ड बनाता है, फैक्ट्रीज़ बनाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में वो लोग पॉइजनस पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, बिना ये चीज़ जाने कि उसका जो इम्पैक्ट है वो सॉइल पे कितने सालों तक रह जाता है, वो खाने से या फिर वो प्रकृति में रहने से प्रकृति को कितना हद तक इफ़ेक्ट पड़ता है। वो फैक्ट्री में जितने भी वेस्टेज होता है, फैक्ट्री का जो जहरीला पानी होता है, वो नहीं देखते, ह्यूमन देखते नहीं हैं कि वो पानी, जहरीला पानी कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री का जो वेस्टेज है वो कहाँ जा रहा है, वो जाता है नदियों में, जिसकी वजह से नदी और ओशन का पानी खराब होता है। पृथ्वी में भले 71% वाटर है, बट ड्रिंकिंग वाटर ओनली 2 to 2.5% है, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ह्यूमन को ये अवेयरनेस होना चाहिए, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल डिप टू डिप होता जा रहा है। तो ये एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि 2030 के बाद 40% ह्यूमन बीइंग को वाटर का क्राइसिस होने वाला है। ह्यूमन इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस नहीं है। इवन पॉपुलेशन भी इस चीज़ के ऊपर एक गहरा इम्पैक्ट देता है। पॉपुलेशन की वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ताकि घर बनाया जा सके, ताकि ऑफिस बनाया जा सके, इवन जो एग्रीकल्चरल फील्ड बनाया जा सके। एक रिसर्च के द्वारा पता चला है कि वेनेजुएला, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, जहाँ पर 2024 के बाद एक भी ग्लेशियर नहीं बचता है। यहाँ पर टोटल 12 ग्लेशियर थे, 2024 में सारे के सारे ग्लेशियर ख़त्म हो गए। हमारी जो पृथ्वी है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के एक्सट्रीम नीड के कारण ख़त्म हो रही है। इंसान को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितनी बुरी तरीके से पड़ रही है, ये हमको समझ में तब आएगा जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगा। इस पॉल्यूशन की वजह से जो पृथ्वी का मेन शील्ड है, ओजोन लेयर, वो ख़त्म हो रहा है।
जिसकी वजह से यूवी रेज, स्किन कैंसर, ये चीज़ें हमारे शरीर पे यूवी रेज का इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर ह्यूमन को हो रहा है। बहुत सारी जीव को मारा जा रहा है, जिसकी वजह से भी प्रकृति का जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो ख़त्म हो रहा है। तो इंसान को अवेयर होना चाहिए। फॉर बेंगली स्टूडेंट, হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট, এটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব। হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে হিউম্যান আদার এনিম্যালের মতো প্রকৃতির উপরে ততটাই ডিপেন্ডেবল যেরকম অন্যান্য এনিম্যাল ডিপেন্ডেবল। ইভেন হিউম্যান আদার এনিম্যালের মতো প্রকৃতিকে শুধু ইউজ করে না, ইভেন মিসইউজ করে অ্যাজ পার দেয়ার নিড। নিজের অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য ধীরে ধীরে হিউম্যান এনভায়রনমেন্টকে শেষ করতে চলেছে। একটা রিসার্চ অনুসারে জানা গেছে যে হিউম্যান যে হারে প্রকৃতিকে মিসইউজ করছে, আস্তে আস্তে ওয়াটার লেভেল, এক্সট্রিম লেভেল অফ পেস্টিসাইড ইউজ, যার জন্য আমাদের রিভারগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ওশেনগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর্লিয়ার ম্যান যারা ছিলেন, মানে বন মানুষ বা আদিম যুগের মানুষরা, ওরা এক্স্যাক্টলি কেভে থাকতেন, প্রকৃতি থেকে ততটাই নিতেন যতটা ওদের প্রয়োজন ছিল। এক্সট্রিম ইউজ কোনো সময় করা হতো না, যার জন্য ওই টাইমে এনভায়রনমেন্ট এতখানি পলিউটেড ছিল না, গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ এতখানি বেশি ছিল না। হিউম্যান এর এক্সট্রিম নিডের কারণে আস্তে আস্তে ওরা হিউম্যান ফরেস্ট কেটে শেল্টার यानी ঘর বানাচ্ছে, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড বানাচ্ছে, অফিস এবং এক্সট্রিম লেভেলের ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে। এগ্রিকালচার ফিল্ডে ক্ষতিকারক পেস্টিসাইড ইউজ করছে। এটা জানা সত্ত্বেও যে এই পেস্টিসাইডগুলোর ইম্প্যাক্ট মাটির মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ থেকে যাবে এবং এটা এফেক্ট করবে বিভিন্ন প্রাণী জগৎকে। ফ্যাক্টরি থেকে যে বেরোনো ওয়েস্টেজ यानी যে ক্ষতিকারক বিষাক্ত ওয়েস্টেজ এবং ক্ষতিকারক বিষাক্ত জলগুলো, এগুলো যাচ্ছে রিভারের মধ্যে, যার জন্য রিভারের যে ওয়াটারটা, যেটা সুইট ওয়াটার, এটা মানুষের পানযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য আর থেকে যাচ্ছে না। আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীতে 71% জল আছে, বাট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অনলি 2 to 2.5% আছে। আস্তে আস্তে হিউম্যানের এই মিসইউজের জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড যে ওয়াটার আছে সেটা ডেপ থেকে ডিপতে চলে যাচ্ছে। একটা টাইমে এমন হবে যে মানুষের পানীয়যোগ্য জল আর থাকবে না। একটা রিসার্চ অনুসারে 2030-এ 40% হিউম্যান জলের ক্রাইসিস, 40% হিউম্যানের মধ্যে জলের ক্রাইসিস দেখা যাবে। আরেকটা রিসার্চ অনুসারে এই এক্সট্রিম ওয়েদার কন্ডিশনের জন্য, মানে অতিরিক্ত গরমের জন্য কোথাও না কোথাও গ্রিন হাউস গ্যাস দায়ী, আর গ্রিন হাউস গ্যাসের জন্য হিউম্যান দায়ী। কারণ ডিফরেস্টেশনের জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ এনভায়রনমেন্টে এক্সট্রিম লেভেলের বেড়ে গেছে। একটা টাইমে ভেনিজুয়েলা, 2024-এর একটা রিসার্চ অনুসারে জানা গেছে যে ভেনিজুয়েলাতে পূর্বে 12টা গ্লেশিয়ার ছিল। 2024-এ সেই সমস্ত গ্লেশিয়ার শেষ হয়ে গেছে। এই গ্লেশিয়ারগুলো যদি আস্তে আস্তে শেষ হতে থাকে তো সি লেভেল এক্সট্রিম পরিমাণে বেড়ে যাবে, তারপর ওয়ার্ল্ডে ফ্লাড স্টার্ট হবে, আস্তে আস্তে প্রাণী জগৎ জলের তলায় তলিয়ে যাবে। তো আমাদের উচিত যে অ্যাওয়্যার হওয়া এবং অ্যাওয়ারনেসটা ছড়িয়ে দেওয়া। ঠিক আছে, চলুন আজকের চ্যাপ্টারটা এখানে কমপ্লিট হয়ে গেল, এনভায়রনমেন্ট চ্যাপ্টারটা। হোপসো আপনারা এই চ্যাপ্টারটাকে ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন আর ভালোভাবে এই চ্যাপ্টারটাকে পড়বেন, তারপর আমার ক্লাসটা নেবেন। হোপসো আপনাদের সুবিধে হবে। চলুন আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করি। गाछ लगान, पृथ्वीटाके बचान। फॉर हिंदी स्टूडेंट आज का ये एनवायरनमेंट चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं। आप लोग प्लीज़ बुक भी पढ़िए और क्लासेस भी लीजिए चीज़ों को इजीली समझने के लिए। चलिए चलते हैं और पेड़ लगाइए, हमारी इस पृथ्वी को बचाइए। ठीक है, नमस्ते।